Psalm 102. A prayer of the afflicted when he is overwhelmed and poureth out his complaint before the Lord. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me. In the day when I call, answer me speedily. For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth. My heart is smitten and withered like grass, so that I forget to eat my bread. By reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. I am like a pelican of the wilderness. I am like an owl of the desert. I watch, and am as a sparrow alone upon the housetop. Mine enemies reproach me all the day, and they that are mad against me are sworn against me. For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping, because of thine indignation and thy wrath. For thou hast lifted me up and cast me down. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass. But thou, O Lord, shalt endure forever, and thy remembrance unto all generations. Thou shalt arise and have mercy upon Zion. For the time to favor her, yea, the set time is come. For thy servants take pleasure in her stones, and favor the dust thereof. So the heathen shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth thy glory. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer. This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord. For he hath looked down from the height of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death, to declare the name of the Lord in Zion, and his praise in Jerusalem, when the people are gathered together, and the kingdoms to serve the Lord. He weakened my strength in the way. He shortened my days. I said, O my God, take me not away in the midst of my days. Thy years are throughout all generations. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall have no end. The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. रोशनी में पाओ अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाओ अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाओ अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाओ अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। मसीह 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 मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसीह। मसीह मसीह मसीह
मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं ये गीत, 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 ये गीत। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह, 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 मसीह। एक है जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं। एक है जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं ये गीत, ये गीत, ये गीत। मसीह, 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 मसीह। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु
और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज्य की खोज में, जो तेरे धर्म और राज्य की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए। क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू। निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। हम धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह को कि आज उसने हमें संभाला है और संभालता रहेगा करके हम धन्यवाद करेंगे। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है।
इजाजत है। पहुंचे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू प्यार रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों में तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों में तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Okay. Once again, church, welcome to the online YouTube service. और फिर से कलीसिया एक बार हम स्वागत करते हैं YouTube में हमारे संदेश के लिए। Yeah, before we start with the word, let us have a word of prayer. और संदेश को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते Father हैं। God, we want to thank you this time. और परमेश्वर इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, as myself and Sunanda, we share the word. और परमेश्वर पिता जैसे मैं और सुनंदा इस वक्त इस वचन को बांट रहे हैं। Let the Rhema word come into our mouth. हमारे मुंह में आपके रेमा वचन को दीजिए। Let your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो जाए। The people who are listening, जो लोग सुन रहे हैं इस they वक्त, may be blessed, उन्हें आशीष मिले, delivered, छुटकारा मिले, they might be sanctified, वो शुद्ध हो जाए and let your grace be upon them. और आपका अनुग्रह उन पर बना In रहे। Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Okay, now a boy is suffering from epileptic of disease.
और जो यहाँ मत्ती 17 में हम लोग देखते हैं एक लड़का है जो मिर्गी के बीमारी से ग्रसित है। So the boy is brought to the disciples उस लड़के को चेलों के पास लाया जाता so है that the disciples might pray for him. ताकि चेले उसके लिए प्रार्थना कर सके। But the disciples could not pray for the boy, could not heal him, could not make him better. लेकिन जो चेले थे उसके लिए ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाए, उसे चंगाई नहीं दे पाए, उसकी तबीयत और अच्छी नहीं कर पाए। And this boy, he sometimes he himself falls in fire और ये जो लड़का था बहुत बार वो खुद होकर आग में गिर जाता था and in water. और पानी में गिर जाता था। So the disciples, they could not make him better or heal him. और चेले जो थे उसे चंगाई नहीं दे पाए। So these people brought this boy to Jesus. तो ये लोग जो थे उस बच्चे को यीशु के पास लेकर आए। And they said, your disciples cannot heal them, Jesus. और उन्होंने कहा कि तेरे जो चेले हैं वो इसे चंगाई नहीं दे So we brought him to you. तो हम इसे आपके पास लेकर So आए। Jesus answered, तो यीशु ने ये उत्तर दिया, O faithless and perverse generation. हे अविश्वासी और हठीले लोगों। Praise the Lord. Praise the Lord। The disciples could not do the thing that Jesus used to do for when he was with them. और यीशु जब उनके साथ था जिन चीजों को कर पाया उन चीजों को चेले नहीं कर पाए। So Jesus told those people, bring that boy over here. और यीशु ने उन लोगों से कहा कि उस लड़के को, बालक को मेरे पास लेकर आओ। And what Jesus did? और यीशु ने यहाँ पर क्या किया? In verse 18 it says, और 18 वचन कहता है, Jesus rebuked यीशु ने डांटा the demon and it came out. और यीशु ने वहाँ दुष्टात्मा को डांटा और दुष्टात्मा बाहर निकल आई। Praise the Lord. Praise the Lord। See, we are talking about moving mountains in our life. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे जीवन में से पहाड़ों को हटा देने See, के विषय में। sometimes mountains are there in everybody's life. और कई बार ऐसा होता है कि हर एक के जीवन में पहाड़ होते हैं। But we have to rebuke that mountains. हमें उस पहाड़ों को डांटना है। Like Jesus rebuked the demon. जैसे यीशु ने वहाँ पर दुष्टात्मा को डांटा। People of God, और परमेश्वर के लोगों, God, we have the authority that Jesus has given us. हमारे पास वो अधिकार है जो यीशु ने हमें दिया है। Jesus said, I have given you the authority. यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें वो अधिकार को दिया है। You can do everything. तुम सब कुछ कर सकते हो। When the people brought this boy to Jesus, जब लोग यीशु मसीह के पास उस बालक को लेकर आए, Jesus rebuked it. यीशु ने उस दुष्टात्मा को And the डांटा। word of God said the demon came out of him. और वचन कहता है कि दुष्टात्मा उस बालक में से बाहर निकल आई। Praise the Lord. Praise the Lord। When there are mountains in your life, जब आपके जीवन में पहाड़ होते do हैं, not pamper it. Do not let it. Don't keep on saying let it be, let it be. सिर्फ उसे ऐसे ही मत जाने दो कि ऐसे ही ठीक है, चल रहा है, चल रहा You है। have to rebuke it उसे डांटना है आपको, because you have the authority. क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। When the time you got salvation, जिस वक्त आपको उद्धार प्राप्त you हुआ, have the authority that God has given you. आपके पास वो अधिकार भी है जो परमेश्वर ने दिया है। Now Jesus is in heaven, अब यीशु स्वर्ग में है, but he has given us the authority. लेकिन उसने हमें वो अधिकार को We दिया have है। the authority to rebuke the demon. हमारे पास वो अधिकार है कि हम दुष्टात्मा को We डांट have the सकें। authority to rebuke the mountain that is hindering your life. हमारे पास वो अधिकार है कि हमारे जीवन में रोकने वाले सारे उन पहाड़ों को हम डांट सकें। So let us see, God has a way of getting your need met. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास वो रास्ते हैं या मार्ग है कि हमारी जरूरतों को वो पूरा कर सके। See, when we have mountains like problems in our life, और जब हमारे जीवन में पहाड़ जैसे कुछ समस्याएं होती हैं, God has a escape way for it. परमेश्वर ने वहां से बचने के लिए भी कुछ रास्तों को रखा है। God has a way to getting your need met. परमेश्वर के पास रास्ता है कि आपकी जरूरत को वहां वो पूरा करे। Let us see this. आइए हम देखते हैं। See, we have a faith in us. हमारे पास हमारे अंदर कुछ विश्वास है। So if your faith is like a seed, आपका विश्वास अगर राई के दाने के जितना भी है, when you plant a seed, जब आप बीज को बोते हैं, God changed the nature
nature of that seed परमेश्वर उस बीज के पूरे स्वभाव को बदल देता है so that it becomes a plant. ताकि वो एक पौधा बन सके. Praise the Lord. Praise the Lord. People of God, परमेश्वर के लोग, when there is mountain in your life, जब आपके जीवन में समस्या होती है, पहाड़ होता है, God will change that thing. परमेश्वर उस चीज को बदल देगा. God will change the nature of that mountain. परमेश्वर उस पहाड़ के उस नेचर को बदल देगा. When the seed is small, जब वो बीज छोटा होता है, God says He changes the nature of the seed. परमेश्वर कहता है कि उस बीज के स्वभाव को वो बदल देता है. God will turn your mountain. परमेश्वर आपके पहाड़ को घुमा देगा. He will change it. वो उसे बदल देगा. So when the seed will, then it will become a plant. और उसके बाद वो बीज जो है पौधे में बदल जाएगा. And the power of life और जो जीवन का सामर्थ्य है, surges into that tender young plant. और उस पौधे में वो बनकर रह जाता है. Praise the Lord. Praise the Lord. People of God, we are the people of faith. और परमेश्वर के लोग, हम विश्वास के लोग हैं. We have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन We है. are the matured people. हम परिपक्व लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं. We are not children. हम बच्चे नहीं हैं. We are not feeding in milk. हम दूध में बढ़ने वाले लोग नहीं हैं. But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहता है, when we have the faith in us, जब हमारे पास अंदर वो विश्वास the है, faith will surge our heart. और वो विश्वास हमारे हृदय को भर देगा. He will make us strong. वो हमें सामर्थ्य बना देगा, मजबूत He बनाएगा. will make us more strengthy. वो हमें और मजबूत बनाएगा. Such a great extent और कितने अच्छे उस हद तक that even a mountain कि वो पहाड़ भी, of earth उस पृथ्वी का पहाड़, cannot stop it from pushing upward. वो ऊपर जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता. Hallelujah. हालेलुया. The seed is small. बीज भले छोटा है, Though it may be anywhere, शायद वो कहीं पे भी हो, it may be in the mountains, वो शायद पहाड़ पर हो, but it will not say, "Arey, I'm growing in a mountain." लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि अरे मैं तो पहाड़ पर बढ़ रहा हूँ. The seed will not be fearful. He will not get scared, वो बीज डरेगा नहीं, but he will push himself. He will push upward that mountain. और उस पहाड़ को वो ऊपर की ओर जोर लगाकर हटा देगा. Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, push yourself towards God. परमेश्वर के तरफ खुद को ढकेल दो. Take the faith and push upward. उस विश्वास को लो और ऊपर की तरफ खुद को Then ढकेल दो. a change will come in your और life. आपके जीवन में वहां पर बदलाव Until आएगा. and unless we do not push ourselves, जब तक हम लोग खुद को वहां पर जोर लगाकर नहीं the बढ़ते, change will not come. बदलाव वहां पर नहीं Do आएगा. not get scared whatever the surrounding is. भले कुछ भी आपकी बातें इर्द गिर्द है, लेकिन उससे डरिए नहीं. Do not get scared what is around me. और हम मेरे इर्द गिर्द क्या है उस चीज से डरो मत. But remember, you have the faith in you. लेकिन याद रखो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर वो विश्वास And है. God can change those things. Amen. और परमेश्वर उन बातों को बदल देगा. You have to push yourself upward. आपको खुद को ऊपर की तरफ You ढकेलना have to है. take your faith and push upward. आपको आपके विश्वास को लेना है और खुद को ऊपर की ओर ढकेलना Then है. a change will come. और उसके बाद वहां पर बदलाव Then आएगा. you will see the mountain starts breaking itself. और आप तब देखोगे कि जो पहाड़ है वो अपने आप टूट रहा है. Our faith in God is like a seed, dear हमारा जो people. परमेश्वर में विश्वास है प्रियो, वो एक बीज के समान We है. put our faith into action. हम हमारे विश्वास को कार्य में डालते We हैं. have to put it in action. हमें उसे कार्य में डालना है. If mountains are there, अगर पहाड़ है भी if वहाँ पर, problems are there, अगर समस्याएं हैं if वहाँ you पर, will keep those things, it will be with you forever. अगर आप उन्हें वैसा ही रखेंगे तो आपके पास हमेशा के लिए बने But रहेंगे. when you will take the faith, put your faith in action and you push yourself upward, then you will see a change. लेकिन आप जब उस अपने विश्वास को लोगे और उस पहाड़ को उस विश्वास के साथ ढकेल दोगे, वहां पर बदलाव आएगा. Dear people, प्रिय लोगों, you are a faith people. आप विश्वासी लोग हैं. Take the faith and put it into action. और विश्वास को लो, उसे कार्य में डालो. When we release it to God, जब हम परमेश्वर के ऊपर उसे छोड़ देते हैं, it takes on a total new nature. हम नए स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Take your mountain and give it to God. आपके पहाड़ को लो और परमेश्वर के ऊपर डाल दो. Give it to Him. उसके पास दे दो. He will take it. वो ले
लेगा, He will take it completely. वो पूरी तरह से उसे ले And He लेगा। will make you in a new nature. Amen। और वो तुम्हें एक नए स्वभाव में He बदल will देगा, change the things. वो बातों को बदल देगा, He will make an escape way for वो you. आपको बचने के लिए एक रास्ते को It बनाएगा, takes on the nature वो एक नए स्वभाव को वहां पर of लेकर a आएगा miracle in the making. और वो चमत्कार के रूप में लेकर आएगा। God will make miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार को He लेकर will आएगा, bring miracles to you. आपके पास वो चमत्कार को लेकर आएगा, But you have to put your faith in action. लेकिन आपको आपके विश्वास को कार्य में डालना You है। have to go. You have to push upwards. आपको ऊपर की तरफ खुद को जोर लगाकर ढकेलना है। You cannot say, I don't have strength. आपको ये नहीं कहना है कि अरे मेरे पास ताकत नहीं है। God says, in your weakness, I will be your strength. परमेश्वर कहता है कि तेरी कमजोरी में मैं तेरी सामर्थ हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। Our God is ready for us in every time. हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर समय तैयार है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय you लोगों, have the authority to move the mountains of your life. आपके जीवन के पहाड़ों को हटाने के लिए आपके पास वो अधिकार You है। have to rebuke those things. उन बातों को आपको डांटना है। When you rebuke, there will be a change in that. जब आप उसे डांटोगे तो बदलाव आएगा वहां And when पर। the faith you put in action, और जब आपके विश्वास को आप कार्य में you डालेंगे, have to take it and push it upwards. आपको लेना है ऊपर की तरफ, उसे ढकेलना Now, है। what is the mountains in your life? तो क्या है ये पहाड़ आपके जीवन में? We all have problems, people. हमारे सबके पास लोगों कुछ ना कुछ समस्याएं There are होती हैं। big problems, there are mountains, like there are huge, there are low, there is small, there are very small. But every people in this earth are having problems. और हम सभी के पास इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं समस्या है। किसी के पास छोटी समस्या है, किसी के पास पहाड़ के जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। But with our human strength, we cannot push a mountain. लेकिन हमारे अगर मनुष्य की सामर्थ के तौर पर देखा जाए तो उस पहाड़ को हम लोग नहीं ढकेल सकते। But when we have the strength of God in us, लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ अंदर है, when we have the word of God in us, जब हमारे पास परमेश्वर का वह वचन हमारे अंदर you है, can move the mountain. आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। People are having mountains in their life. लोगों के जीवन में पहाड़ होते हैं। There are loneliness, एक अकेलापन, loss of job, और वहाँ पे एक जैसे बहुत लोगों के काम छूट गए there हैं, are diseases, बीमारियां हैं, a wounded relationship, और टूटे हुए रिश्ते हैं, troubles in your homes, और आपके घरों में तकलीफें हैं, or something else. और कई बातें, There are so many things. बहुत सारी बातें। But today I want to encourage लेकिन you. आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, Be encouraged in Jesus. और यीशु मसीह में हमेशा प्रोत्साहित बने रहिए। Jesus shows the way for us और यीशु हमें रास्तों को दिखाता है to see that the mountain is removed. ताकि वो पहाड़ हट जाए वहां से। Hallelujah. हालेलुया। When the disciples could not heal that boy, जब चेले उस बच्चे को चंगाई नहीं दे पाए, what Jesus did, यीशु ने क्या किया? He just rebuked the demon. उसने उस दुष्टात्मा को डांटा। People of God, start rebuking your mountain. आमेन। परमेश्वर के लोगों, उन पहाड़ों को डांटना शुरू कीजिए, Start rebuking it. उसे डांटना शुरू कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord। The Bible says बाइबल कहती है, Satan is like a roaring lion. और जो शैतान है गरजने वाले सिंह के He समान is है, roaring. He is roaring. और वो गरजता है On whom he will devour. ताकि वो किसको फाड़ खा ले। But you have Jesus in your life. लेकिन आपके जीवन में आपके पास यीशु When है। you say demon get out, it has to go. जब आप कहेंगे कि शैतान निकल जा तो उसे जाना ही है। Start rebuking your mountain, people of आपके God. पहाड़ों को डांटना शुरू कीजिए परमेश्वर के Say, लोगों। I was lonely, but I am not now. कहिए कि भले मैं अकेला था लेकिन अब मैं अकेला नहीं I हूँ। have Jesus with मेरे me. पास यीशु है Who मेरे, is with me? जो हमेशा मेरे He साथ है। says, I will not despair you. और वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं I will छोड़ूंगा, not leave you. मैं तुझे त्यागूंगा I will नहीं, not forsake you. मैं त्यागूंगा I नहीं, will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। Like a hen covers her chicks under her
wings, जैसे एक मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती the है, same way God will protect you. उसी तरह से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। You may be lonely. शायद आप अकेले हैं, You may say, my life is lonely. शायद आप कह रहे होंगे कि मेरा जीवन अकेलेपन में गुजर रहा But है, today an encouraging word. लेकिन आज का एक प्रोत्साहित का वचन That है, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Don't say, I have no job. मत कहिए कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है। God has given you the power to get wealth, dear people. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है संपत्ति कमाने के You लिए। have the power to get wealth. आपके पास वो सामर्थ्य है ताकि आप संपत्ति को प्राप्त कर Start सको। rebuking those lose of jobs. और जो काम जाने का बात है उसे डांटना शुरू Put कीजिए। your faith in action. आपके विश्वास को कार्य में डालिए। Put yourself pushing yourself. खुद को वहाँ पे जोर दीजिए खुद के ऊपर। You have to go upward. आपको ऊपर की तरफ जाना है। Don't say I don't have job. मत कहिए कि मेरे पास काम नहीं You है। are the children of God. आप परमेश्वर के लोग हैं। When we are called the children of और God, जब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते we हैं, have everything that God has kept for us. और आपके पास वो हर एक चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी So है। Jesus will show you the way how to remove mountains. तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा किस तरह से आप उस पहाड़ को हटा सकते See, हैं। God has given us authority देखिए परमेश्वर ने हमें वो अधिकार को दिया है। and we are victorious. हम जयवंत हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus said, I am going to heaven, यीशु ने क्या कहा? मैं स्वर्ग जा रहा but the हूँ, Holy Spirit will come upon you. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर He will आएगा। give you authority. वो तुम्हें अधिकार को He देगा। will make us a victorious वो person. तुम्हें जयवंत व्यक्ति बनाएगा। So we have to learn how to have a victorious life. तो हमें सीखना है कि वो जयवंत जीवन हम किस तरह से We जी have to सके। have this authority. हमें उस अधिकार को लेना है। Like when Jesus cursed that fig tree, जैसे कि यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को डांटा, it automatically withered. वो अचानक से अपने आप सूख गया। Praise the Lord. Praise the Lord. People of God, we must learn to pray with passion. और परमेश्वर के लोगों, हमें उसी ताकत के साथ प्रार्थना करना We सीखना है, have to तरस के pray साथ। in faith. हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। When you see everything is going loose, और जब देखते हैं कि सारी बातें वहां पर ढीली पड़ रही you हैं, have to learn to pray in passion. आपको उस तरस के साथ प्रार्थना करना Put सीखना your है। prayer in faith. आपके उस प्रार्थना को विश्वास में डालना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, when you put your faith in action, जब आप आपके विश्वास को कार्य में you डालोगे, are acting. आप जब कार्य करेंगे, When you are doing the will of God, जब आप परमेश्वर के इच्छा को वहां पर पूरी करेंगे, speak to the mountains. उस पहाड़ को कहिए, Speak to the mountains. उस पहाड़ को कहिए, He led them to prepare for situations, ताकि उस परिस्थिति के लिए वो तैयार हो जाए, to find which is necessary to take direct authority. ताकि उस अधिकार को वो डायरेक्टली ले सके वहां Praise the पर। Lord. Praise the Lord. Jesus is saying, speak. और यीशु ने कहा बोलो। When we see Mark chapter 11 verse 20 to 24, जैसे हम लोग मरकुस का 11 अध्याय देखते हैं 22 से 24 तक। 20 to 24. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. God, Jesus saying, speak to the mountains. और यीशु कहता है उस पहाड़ को बोलो। When Jesus spoke to that fig tree, जब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को कहा, it withered. वो सूख गया। Like when Jesus spoke to the fig tree, और जैसे यीशु ने वहाँ अंजीर के पेड़ से कहा, and the tree withered. और वो पेड़ वहाँ पर सूख गया। So it means और इसका मतलब है when we pray,
जब हम प्रार्थना we करते have to हैं, pray with passion and faith. हमें विश्वास के साथ और उस तरस के साथ प्रार्थना करना We है। have to speak to the mountains. हमें उस पहाड़ को बोलना है। Whatever the situation that is front of us, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, it is necessary to take a direct action. बहुत जरूरी है कि हम सीधे वहां पर कार्य को ले, It to direct authority. हम उस सीधे अधिकार को ले। Hallelujah. हालेलुया। Because God has given us that authority. क्योंकि परमेश्वर ने उस अधिकार को हमें दिया You है। cannot keep your mountain with you forever. आप आपके पहाड़ को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते। You have to speak on it. आपको उसके ऊपर बोलना है। You have to speak the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर You बोलना have है। to put your faith in action. आपको आपके विश्वास को कार्य में डालना है। Because whatever happens in spiritual realm, क्योंकि जो कुछ बातें आत्मिक स्तर में होती the हैं, impact is seen in natural realm. उसका असर हम शारीरिक तौर पर देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So whatever happens spiritually, जो कुछ भी इसलिए जो आत्मिकता में होता the है, impact is seen in naturally. शारीरिक तौर पर उसका असर दिखाई देता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, start speaking to your mountains. अपने उस पहाड़ को बोलना शुरू कीजिए। Start praying with passion and faith. विश्वास के साथ और तरस के साथ प्रार्थना करना शुरू You have कीजिए। to speak. आपको बोलना है। Don't wait how the situation will turn or no. सिर्फ इस बात के लिए रुके मत रहिए कि परिस्थिति किस तरह से बदलेगी। Whatever the situation now is there in front of you, अब आपके सामने भले किसी भी स्थिति में है take परिस्थिति, direct authority सीधे वहां पर अधिकार को लीजिए and start speaking the word of और God. परमेश्वर के वचन को वहां बोलना शुरू Like कीजिए। Mark 11:23 says. जैसे कि मरकुस 11:23 कहता है, Yeah, we'll read. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Jesus commanded और यीशु ने यहाँ पर आज्ञा दी to speak into the face of such obstacles. ऐसे अड़चनों पर बोलने के लिए। You have to speak to the problems. आपको आपकी समस्या के ऊपर You बोलना have है। to speak to the diseases. आपकी बीमारी को ऊपर आपको You बोलना have है। to speak on the wounded relationship. जो जख्मी हुए रिश्ते हैं उनके ऊपर आपको You बोलना have है। to speak on the trouble of your homes. आपके घर में जो भी तकलीफें हैं उनके ऊपर आपको बोलना You है। have to speak on it. आपको उन सारी बातों पर You बोलना have है। to speak. आपको बोलना है। It is not superstitious. ये कोई अंधविश्वास की बात You are नहीं। not doing any superstitious. हम कोई अंधविश्वास की बात But यहाँ you पर are नहीं कर रहे, speaking the word of God. लेकिन आप परमेश्वर के वचन को वहाँ पर बोल रहे हैं, Because the word of God has life. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है And you are acting on faith. और आप विश्वास के तौर पर वहाँ पर कार्य When कर you रहे हैं। put the word of God जब आप परमेश्वर के वचन को वहाँ पर डालते and you हैं start acting in faith, और आप विश्वास में कार्य करना शुरू you करते are हैं, speaking to it. आप उसके ऊपर बोल रहे हैं Then slowly the things will start to change. और धीरे धीरे बातें वहाँ पर काम करना शुरू होंगी Things will start to break. और चीजें वहाँ पर टूटना शुरू होंगी। Learn to speak to your mountains. आपके पहाड़ को बोलना सीखिए, Whatever big or small, भले कुछ भी हो, छोटी है या बड़ा है, whatever problems, जो कुछ भी समस्या है start speaking to it. उसके ऊपर बोलना शुरू कीजिए। Say you have the Rhema word of God. आपके पास जो रेमा वचन है उसको बोलिए। You have the authority of God. आपको आपके पास परमेश्वर का वो You, अधिकार है। you are the victorious people of God. आप परमेश्वर के जय पाए हुए लोग हैं। You can change the things around you. आपके इर्द गिर्द की चीजों को आप बदल सकते हैं। So start speaking, dear people of तो God. परमेश्वर के प्रिय लोगों बोलना शुरू कीजिए, Learn to speak. बोलना शुरू कीजिए, Learn to speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलना सीखिए Learn to put that faith in action. और सीखिए कि उन विश्वास को कार्य में लाना, That will help you to grow in strength. और वो आपको सामर्थ देगा, बढ़ने के लिए मदद करेगा। Because when mountains are there in front of us, क्योंकि जब हमारे सामने पहाड़ होते हैं, when there are problems, जब समस्याएं होती when there हैं, are obstacles, जब अड़चने वहां पर when होती there are हैं, hindrances, जब वहाँ पे सारी बातें रुकावट बनकर our होती mind is हैं, blank. हमारा जो दिमाग है बंद हो We जाता है, cannot think anything. हम कुछ
सोच नहीं पाते हैं। But that time we have to take the strength of God, dear उस people, समय परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की सामर्थ को लेना है and speak the word of और God. परमेश्वर के वचन को बोलना है। And then you will see the mountains moving. और तब आप देखेंगे कि पहाड़ वहां से हट रहे And हैं how the God's merciful hand changes the things. और परमेश्वर का कृपालु हाथ वहां पर चीजों को किस तरह से बदलेगा वो आप And देखेंगे। continuous, you have to believe. और आपको विश्वास करना जारी रखना है And you have to see a miracle thing. और आपको वहां पर अद्भुत बातों को देखना है And you have to see the miraculous thing, how it happens in your और life. आपको अद्भुत बातों को आपके जीवन में कार्य करते हुए देखना He है makes impossible things actually come to pass by His power. और उसके सामर्थ के जरिए वो असंभव बातों को संभवता में बदल देगा। It is only God who makes impossible things to possible. सिर्फ हमारा परमेश्वर है जो असंभव बातों को संभवता में बदल सकता Because है, He is a powerful God. क्योंकि वो सामर्थी He परमेश्वर is है, an almighty God. वो सर्वशक्तिमान He परमेश्वर is an है, awesome God. वो अद्भुत परमेश्वर He is है, a wonderful वो God. अद्भुत परमेश्वर He is है, a big God. वो सबसे बड़ा And परमेश्वर we है serve a living God. और हम जीवित परमेश्वर की सेवा So करते this हैं। evening I want to encourage all of you who are hearing. और जो कोई भी सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ आज की शाम, Whatever mountain is there, भले कोई भी किसी तरह का पहाड़ है, Jesus is saying, यीशु कहता है do not doubt. आप संदेह मत करें, Do not doubt. संदेह मत करें, Put your faith and start moving it. आपके विश्वास को वहां पर रखिए और उस पहाड़ को हटता हुआ देखिए। Hallelujah. हालेलुया। Because the word of God says, if you have a faith like a mustard seed, क्योंकि वचन कहता है अगर आपके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास है, when you say to the mountain, get up and put on yourself in water, it will go. जब आप कहेंगे कि पहाड़ उखड़ जा और पानी में गिर जा, तो वो उखड़ कर पानी में गिर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Start rebuking your mountain. आपके पहाड़ को डांटना शुरू कीजिए, Start putting your faith in action. आपके विश्वास को कार्य में डालना शुरू We कीजिए। truly serve a God of signs and wonders हम चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर की सेवा करते who हैं, does miracles जो चमत्कारों को करता and है is able to move the mountains और वो पहाड़ को हटाने के लिए सक्षम that है, are standing in front of our way. जो हमारे रास्तों में खड़े होते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, the God who says, परमेश्वर जो कहता है I will not leave you, मैं तुम्हें छोड़ूंगा I will नहीं, not forsake you, मैं तुम्हें त्यागूंगा do नहीं, not be discouraged, निराश मत होइए, I am with you. मैं तुम्हारे साथ Our हूँ। God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे The साथ है। Bible says बाइबल कहती है He is in heaven, वो स्वर्ग में है, but His eyes are upon His righteous people. लेकिन उसकी आंखें उसके धार्मिक लोगों पर बनी है। People of God, you are righteous. परमेश्वर के लोगों, आप वो धर्मी व्यक्ति हैं। That's why God's eyes are upon you. इसीलिए परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हैं। Nothing will stop you. आपको कोई भी चीज रोकेगी नहीं। You have the authority. आपके पास वो अधिकार है। You are a victorious people. आप जय पाए हुए लोग हैं। Pray with passion and faith. विश्वास के साथ, उस तरस के साथ प्रार्थना Start कीजिए, rebuking, डांटना शुरू कीजिए, because God is there to encourage you. क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर He है। will show you the way, आपको वो रास्तों को दिखाएगा and He will start removing the mountain और वो वहां से पहाड़ को हटाना शुरू from करेगा your life. आपके जीवन में से। So I want to bless you all with this word. और इस वचन से हम आप सभी को आशीष देते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God in heaven, और स्वर्गीय परमेश्वर पिता, thank you for this evening. आज की शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते Thank हैं। you, Lord. No mountains is small in front of us सच में हमारे सामने कोई भी पहाड़ छोटा नहीं है, because you are with us. क्योंकि आप हमारे साथ हैं। Lord, nothing is impossible with you. परमेश्वर, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं, Everything is possible. आपके लिए सब कुछ संभव है। Father God, I pray all the people who are hearing and seeing, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, Lord, strengthen them. आप उन्हें मजबूत बनाइए। They might be weak, शायद वो कमजोर है, but Lord, we speak your strength. लेकिन आपके सामर्थ को हम उनके अंदर बोलते Their हैं। faith might be weak, शायद उनका विश्वास कमजोर है, but Lord, we speak your strength. लेकिन आपके ताकत को हम उनके अंदर बोलते Let हैं, the Rhema word come in their mouth, Abba Father. ताकि उनके मुंह में एक रेमा वचन आ जाए। Lord, let them put their faith in action
ऐसा हो कि वो उनके विश्वास को कार्य में डालना शुरू and करें, start rebuking all the mountains that is in front of them. उनके सामने जो भी पहाड़ है उनको वो हटाना शुरू करे, Lord, डांटना शुरू करे। I pray for all the people. मैं सारे लोगों के लिए पिता प्रार्थना करती हूँ। Lord, you have given the authority. आपने जो अधिकार को दिया है, Lord, they are victorious people. वो जयवंत लोग हैं पिता। And Lord, everything is moving from them. और हर एक वो चीज उनके सामने से हट रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you for your merciful hand. धन्यवाद प्रभु जी आपके कृपालु हाथ के Lord, लिए। in this pandemic's time of trouble, और इस समय जो तकलीफ है परमेश्वर बीमारी को लेकर, we know your hand is upon each and every family. हम जानते हैं कि आपका वो कृपालु हाथ हर एक परिवार के ऊपर है। Lord, bless them and keep them. हर एक को संभाले रखिए पिता। Thank you, Abba Father. धन्यवाद अब्बा पिता। In Jesus' name, we यीशु pray. के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। सो गुड। और परमेश्वर धन्यवाद दो कि परमेश्वर लगातार हमसे बातें कर रहा है। और आज के दिन जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों तक लगातार यूट्यूब में जुड़े रहें, ताकि हम जो सर्विस है आपको लगातार दें। और परमेश्वर धन्यवाद दो, पूरे हफ्ते में आप के साथ हम हैं, और हो सकता है बीच बीच में आपके घर आएंगे, सोमवार से गुरुवार तक, मंडे टू थर्सडे बिटवीन। और आपसे लगातार हम फ़ोन पे जूम, आने वाले दिनों में जूम में मंगलवार और शुक्रवार को जूम रहेगा, स्पेशली लीडर्सों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, लेट द गुडनेस एंड मर्सी बी अपॉन अस। और परमेश्वर, जैसे कि साम 122 वर्स 7 में कहता है, तेरे वॉल्स के ऊपर, तेरे दीवारों पे, घर की दीवार के अंदर पर, तेरे दीवारों के ऊपर उन्नति और सुख और शांति रहे। लॉर्ड, वी स्पीक लॉर्ड prosperity and peace in the walls of every house of Hallelujah Church. In Jesus' name, let the love of God, grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us. परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ रहे, हम सबके साथ कांटेक्ट रहेंगे। God bless you. Amen.